Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Aadhaar eKYC transactions jump 18.5% to 85 crores in the quarter 3 of the financial year 2023. Domestic markets witness heavy losses. Sensex closes below the 59,400 point level. Nifty settles below 17,650. And global crude prices rise to trade around $88.84 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में आधार eKYC का उपयोग करके 18% बढ़कर 85 करोड़ रुपए हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 54,900 से नीचे और निफ्टी 17,650 के स्तर से नीचे फिसला और वैश्विक बाजारों में कच्चा तेल $88.84 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुआ। Aadhaar eKYC transactions have jumped 18.53% to 84.8 crore between October to December 2022. The Electronics and Information Technology Ministry said in the last month alone, 32.49 crore eKYC transactions were carried out using Aadhaar, which was over 13% more in comparison to November 2022. By the end of December 2022, the cumulative number of Aadhaar eKYC transactions have gone up to more than 1,382 crore. The ministry said Aadhaar authentication transactions are also witnessing a growing adoption and usage among residents. In the month of December alone, 208.47 crore Aadhaar authentication transactions were carried out. It said Aadhaar eKYC service is increasingly playing an important role for banking and non-banking financial services. 169 entities, including 105 banks, are live on eKYC. And let's have a look at how the markets did today. Amit? बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज लगभग 1.5% की गिरावट से 874 अंक लुढ़ककर 59,330 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.6% के नुकसान से 237 अंक गिरकर 17,604 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसए मिड कैप सूचकांक में 1.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.9% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed heavy losses of about 1.5%. The index of the top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, the Sensex ended below the 59,400 point level. The index of the top 50 companies at the National Stock Exchange closed below the 17,650 level. Both stock indices slipped amid positive global cues. Sensex declined by 874 points, 1.45% to finish at 59,330. Nifty 50 also fell by 287 points, 1.6% to settle at 17,604. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index plunged 1.3% and the small-cap index ended 1.9% down. In the Sensex pack, 8 companies posted gains while 22 witnessed losses. Tata Motors was the top gainer as it rose by 6.3%, followed by ITC, which gained 1.8%. Mahindra & Mahindra ended 0.7% up. On the other hand, SBI fell 5%, followed by ICICI Bank, which declined by 4.4%. IndusInd Bank tumbled 3.4% and Axis Bank ended 2.1% down. In sectoral indices at the BSE, 3 sectors gained while the rest logged losses. The automobile sector gained 1%. Healthcare added 0.5% while FMCG ended 0.2% up. On the other side, utility sector fell 7.3% and power sector index plunged 6.8%. Oil and gas declined by 5.7% while energy sector ended 5.2% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares
of 887 companies gained, while 2,671 companies fell. Shares of 100 companies remain unchanged. और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। शर्मा जी, किस तरह से आंकेंगे आज दो बड़ी खबरों को? अगर सिर्फ शेयर बाजार को देखें तो वहां से थोड़ा सा झटका लगता हुआ नजर आता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि भारतीय वर्ग या भारत की अर्थव्यवस्था में अब उसका डिजिटलीकरण बहुत तेजी से बढ़ गया है। जिस तरह से हमने KYC ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करी, उसमें तकरीबन 18.5% की बढ़त हुई है अगर तीसरी तिमाही के बारे में हम बात करते हैं, और ये बढ़कर 85 करोड़ हो गया। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस से अर्थव्यवस्था को कितना सहारा मिलता है और ये कितनी तेजी से आगे बढ़ने की और अग्रसर होती है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने पूछा कि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट हमें देखने को मिली है, देखिए स्टॉक मार्केट का नेचर होता है कि एक टाइम पे मोमेंटम आता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, करेक्शंस आती हैं, कई बार करेक्शंस बहुत जल्दी आ जाती हैं या कुछ समय के बाद आती हैं। तो मार्केट की नेचर है कि डायनामिक रहना, वो स्टैटिक कभी नहीं होती कि एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगी। मार्केट्स या तो अपसाइड जाती हैं या डाउन साइड जाती हैं, या फिर थोड़ा बहुत कई बार स्टिकी रहती हैं। तो आज का जो मार्केट में जो सेलिंग हुई है, जो थोड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है, तो उसके लिए कोई हमें ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बजट से पहले कई तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बजट में हमें बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा, तो उसके बाद मार्केट्स वापस रिवाइव होती हैं। तो काफी कुछ मतलब बहुत ही एक वॉलेटिलिटी का माहौल बन जाता है बजट के आसपास, जब मार्केट्स में हम देखते हैं कि ऐसी हलचल हो रही है। और दूसरा जो KYC की आपने बात की, ये हम जानते हैं कि इकोनॉमिक मोमेंटम जो कोरोना के बाद बना है, जो कोरोना के बाद हमने एक स्पीडी रिकवरी की, एक ही क्वार्टर में हमने अपना पॉजिटिव ग्रोथ रेट हासिल किया और उसके बाद हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स। इस साल भी हम 7% के आसपास ग्रो करने की अपनी जो क्षमता रखते हैं, जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है। तो ऐसे मौके पे स्वाभाविक है कि हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन, KYC नॉर्म्स, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है एक बहुत ही अच्छे टेक ऑफ स्टेज पे है, जिसमें हम आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम, इससे भी ज्यादा जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भारत एक डबल डिजिट में ग्रो करने वाली इकोनॉमी बनेगा और हम 5 से लेके 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे 2030 तक, 31-32 तक। तो ये सभी आंकड़े अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास जो करने पड़े, जो हमने रिफॉर्म्स की पिछले कुछ वर्षों में, खासकर जो कोरोना के बाद रिफॉर्म्स हुई हैं, तो सभी का इम्पैक्ट है कि ग्राउंड लेवल पे जो रिफॉर्म्स का इफेक्ट है वो विजिबल होना शुरू हो गया है। इकोनॉमी में मोमेंटम बना है। आपने देखा होगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बहुत इंक्रीज हो रहा है। कोरोना के बाद खास करके जो रिटेल ट्रांजैक्शन है वो 40-50% के आसपास हो गई है। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो इकोनॉमी में एक ऐसे लेवल पे हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है काफी स्ट्रेंथन हुई है और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और डॉक्टर शर्मा, द PSU बैंक इंडेक्स fell by 5% today. Were you expecting such a sharp correction for PSU banks, which have shown a decline in non-performing assets and an increase in their net interest income? Or do you see the markets recovering starting on Monday next week with short covering positions then? I think this is only the profit booking, because NPAs is only one thing, because then banking sector was going like anything in the stock market, and they posted very good growth momentum during the last 6-7 months, and I think 20-25% growth was there in many of the stocks. So I think before budget, this is a normal correction which has taken today, and I think day before yesterday also. So going forward, I think there will be a recovery in the coming times, like before the budget. Stocks are expected to recover once again and make a momentum with the budget announcements.
So you expect the market to be equally volatile Monday, Tuesday before the budget on Wednesday next week? Every time markets are extremely volatile for the near about the budget, and same is happening for the current year also. And but markets are always positive. We have observed during the last many years that though markets remain volatile during the budget days, but after the budget, markets make a momentum and make new highs. तो क्या ये माना जाए कि बाजार जो है वो बजट की संभावनाओं को तलाश करता हुआ अपने आप को तैयार कर रहा है कि बजट की जो घोषणाएं हों उसके हिसाब से निवेशक अपना रुख तैयार करें? जी जी जी, आपने सही बताया कि बजट के ऊपर अभी बजट आने में, जैसे आज 22 तारीख हुई है तो अपने पास 4 दिन और है, जिसमें 2 बीच में छुट्टी आ रही है, तो दो ही कारोबारी सत्र रहेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कई बार कोई ऐसा एक जंक्शन बनती है कि इस बार ऐसा मार्केट बजट में होने वाला है, इस बार टैक्सेस में ये छूट मिलने वाली है या कुछ ऐसे होने वाला है। तो दिस इज ऑल न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी। जब कोई मार्केट को एक्चुअल में अभी कुछ आगे सर्टेन नहीं है कि अभी क्या होगा, तो मार्केट उसी न्यूज बेस्ड अपना मोमेंटम लेती हैं। जैसे कभी एनपीए के ऊपर कोई खबर आ गई, या कई बार ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से कुछ ऐसा। तो एक जो जिन स्टॉक्स में मार्केट ने बहुत अच्छा रुझान देखा हुआ होता है, उछाल देखा होता है, तो खासकर उन स्टॉक्स में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की वो एक संसाधन बन जाता है कि भैया अभी इन स्टॉक्स में और ऊपर जाने का शायद मोमेंटम ना बने, तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। बाद में जो वो अच्छे स्तर पे मिलते हैं वापस की रिकवरी आती है। तो इसमें कुछ चिंता का बात नहीं है। दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स, दैट मार्केट्स बिकम वेरी वेरी वॉलेटाइल नियर द बजट डेज। तो मतलब आगे जो 2 कारोबारी सत्र हैं यानी सोमवार और मंगलवार को भी तकरीबन हम बाजार में इसी तरह के उतार चढ़ाव दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आज जो सेक्टर्स की बात करें तो 3 सेक्टर ऐसे थे जिसमें भी बढ़ोतरी नजर आई है। जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर है 1% की तकरीबन वहां पे बढ़त रही है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी 0.5% की बढ़त रही है, और एफएमसीजी में भी हालांकि मामूली बढ़ती हुई है। लेकिन ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जिसमें बढ़ोतरी, कोई विशेष कारण इसके पीछे मानते हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि मोटे तौर पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा? देखिए, उतार चढ़ाव तो मोटे तौर पे थोड़ा बहुत रहेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स के लिए कुछ आशाएं बढ़ जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर एक बार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं करती है, और उसमें जो बढ़ोतरी होती है वो 30-35% का जो बजट एलोकेशन से हमें वो बढ़ोतरी आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी आती है। तो उससे क्या होता है कि जो जब ऐसी आशाएं होती हैं तो उस चीज से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो कंपैरेटिवली एक अच्छा उछाल लेते हैं। या फिर कई बार ऐसे होता है कि एक सेक्टर के लिए इस बार कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है या कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, वो सेक्टर्स में वो करेक्शन फेस करते हैं। तो ये एक ट्रेंड, ये चलन बना रहेगा अभी आने वाले कुछ दिनों में, और बजट के दिन भी ये चलेगा जब तक फाइनली ऑनरेबल मिनिस्टर अपना स्पीच जो है पेश नहीं कर देते। एक और संभावना है और एक और इस तरह की बाजार में बात रहती है, या आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि चूंकि इस सरकार का यह पूर्ण बजट जो है ये ही रहेगा, उसके अगले वर्ष तो शायद पूर्ण बजट ना हो, तो ऐसे मौके पे सरकार बहुत सारे ऐसे सधे हुए कदम भी उठाती है जो लोक लुभावन किस्म के भी हों और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत ज्यादा नकारात्मक असर न पड़े। एक विशेषज्ञ के तौर पे आप क्या मानते हैं, पिछले इतने सालों से सरकार ने इस तरह के बजट पेश किए हैं, लेकिन शायद ऐसी चीजें बहुत सकारात्मक रूप से, बहुत प्रभावी रूप से तो नहीं नजर आई? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव बात है कि जब एक इलेक्शन ईयर होता है उससे पहले का जो बजट होता है तो उसको बहुत बढ़िया बजट माना जाता है आमतौर पे। तो जो कि एक वेलफेयर इंड्यूसिंग होता है, जो सरकार जो है हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है और काफी अच्छे जो बेनिफिट्स है वो देना चाहती है, तो आमतौर पे एटलीस्ट जनता के लिए तो ये बहुत अच्छा बजट होता है। तो इस बार भी वही उम्मीद है कि सरकार बहुत अच्छा कुछ करने जा रही है वेलफेयर के ऊपर, जो लोगों को बेनिफिट हो। खासकर मिडिल क्लास इस बार काफी एक्सपेक्टेशंस रख रही है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन काफी हाई गया है। इन्फ्लेशन हाई के जाने की वजह से जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उनके बियॉन्ड जो उनका जो इनकम लेवल है, कई बार वो क्योंकि उसको इंडेक्स करना चाहिए हमें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। तो काफी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि मिडिल क्लास अभी चाहती है कि कुछ टैक्सेशन में ऐसे बदलाव हों जिनसे उनका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़े,
जिससे और ज्यादा वो कंजम्पशन कर पाए और इकोनॉमी को और अच्छा बूस्ट मिले। सरकार की किटी के पास इसने कितना आपको लगता है कि कितनी संभावनाएं हैं वो इस तरह के उपाय फौरी तौर पे तुरंत कर सके, खासतौर पे अगर हम इसे मिडिल क्लास तक ही सीमित रखते हैं तो? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो सरकार की एक्सपेक्टेशन थी जो रेवेन्यू के लेके, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू गया है, जीएसटी कलेक्शंस बहुत अच्छी हुई है, डीटी कलेक्शंस, डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। तो कुल मिला के जो सरकार की रेवेन्यू प्रोजेक्शन थी वो फुलफिल हुई है। तो अभी सरकार के लिए आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट बजट होगा तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऐसा स्कोप है जिससे वो काफी कुछ आगे मिडिल क्लास को दे सकते हैं, या फिर जो थ्रेशोल्ड लेवल पे जो टैक्स मिनिमम लेवल पे लगता है, जैसे अभी 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो शायद इसको बढ़ा के अगर 5 लाख कर दिया जाए, क्योंकि काफी सालों से हम इन्फ्लेशन अभी तो बढ़ा है, तो उस वजह से जो ये थ्रेशोल्ड लेवल्स है उनको इंक्रीज करने की जरूरत है, जिससे कि सरकार का जो रेवेन्यू है और बढ़ेगा, टैक्स ब्रैकेट बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है विद दी कंजम्पशन, जब ऐसे जो बेनिफिट होते हैं कि टैक्स लैब में चेंज हुआ है तो लोगों के पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, तो उनके जो प्लान्स हैं कुछ परचेज करने के वो फुलफिल होते हैं, तो इकोनॉमी में एक मोमेंटम आता है। अगर उद्योग जगत की बात करें तो उद्योग जगत ने काफी सख्त समय देखा है, खासतौर पे फंड्स को लेके। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को मद्देनजर रखते हुए बहुत बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी और काफी ऊंची ब्याज दरें हो गई हैं। ऐसे समय में क्या उद्योग जगत जो उम्मीद कर रहा है कि सरकार इस तौर पे भी कुछ राहत देगी या देने की उम्मीद जगती है? जी, उद्योग जगत के लिए, क्योंकि काफी जो पिछले 3 साल हैं काफी डिफिकल्ट रहे हैं। पहले तो कोरोना की वजह से इकोनॉमी का स्टॉप स्टार्ट सिचुएशन थी, जिसकी वजह से उद्योग जगत मोमेंटम में नहीं आ पाया, काफी फैक्ट्रीज में लॉस हुआ, फैक्ट्रीज बंद हुई, छोटे मझोले कारोबारियों के ऊपर काफी ज्यादा असर हुआ। और उसके बाद जैसे ही रिकवरी शुरू हुई तो उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से वापस फिर एक बार इम्पैक्ट हुआ। आपको अगर हम देखें तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिसलिरेट हो रहा है, पूरे इकोनॉमीज में, काफी इकोनॉमीज में रिसेशन की बात चल रही है। तो इस जंक्शन पे उद्योग जगत अभी भी चिंतित है कि आने वाले टाइम में जो कैसा इकोनॉमिक जो ट्रैजेक्टरी है, इकोनॉमिक माहौल कैसा रहेगा। तो इस टाइम के एक्सपेक्टेशंस है कि सरकार उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको फोकस करेगी, उसको रिड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगी। जैसे कि हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटीज के ऊपर, तो उसमें अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जो हम रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं उनमें कुछ उनको राहत मिले तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। और फिर उसमें जैसे एमएसएमई के लिए सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उद्योग, ऐसे बिजनेसेस हैं जो एमएसएमई में तो है लेकिन उनके लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे कि कुछ ऐसी फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, उनको वो उतने टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते। तो ऐसी जो ओवरऑल जो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं, खासकर जो छोटे मझोले जो बिजनेसेस हैं, उनकी काफी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस डिफिकल्ट माहौल में, जब पहले वो 3 साल उसमें वैसे माहौल में गुजरे हैं, अभी भी अनसर्टेनिटीज हैं, सरकार ने बेनिफिट्स बहुत दिए हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में उन बेनिफिट्स को आगे मोमेंटम देने की जरूरत है। अभी भी उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, जिससे कि वो आगे अपना जो ग्रोथ मोमेंटम है वापस हासिल कर सके। जी, आपने बहुत सही बात बताई कि उद्योग जगत को चौतरफा जो है वो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक चुनौती ये भी रही है कि जो रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमतों, उसमें बेतहाशा भी बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पे अगर हम सिर्फ मेटल क्षेत्र की ही बात कर लें। इसमें किस तरह से राहत की उम्मीदें जगती हैं और सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कई बार जो हमारी जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे वर्ल्ड में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली उनमें भी बदलाव होना स्वाभाविक होना चाहिए। डायनामिक कस्टम ड्यूटीज जैसा माहौल हो वैसे ही उसके ऊपर फ्लक्चुएशन हो, कम ज्यादा होने की संभावना हो तो बेनिफिट होता है, तो जिससे कि उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो कम होती है। और दूसरा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में
जिस तरीके से कंप्लाइंसेस है, सरकार ज्यादा से ज्यादा कंप्लाइंसेस को ईज करने की कोशिश कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत फोकस है, तो अभी भी उसको प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड लेवल पे हम चेक करें तो काफी जगह पे कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, तो उनको भी दूर करने की जरूरत है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सरल किया जाए। जैसे कि कंप्लाइंसेस में हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन डिमांड करते हैं, लेकिन 10 चीजों में से कई बार एक चीज को अगर हम फिजिकल के लिए बोल देते हैं तो वही एक रोड ब्लॉक बन जाती है। तो पूरे का पूरा सिस्टम एकदम से फेसलेस, जिसको हम बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम में भी फेसलेस सिस्टम होना चाहिए, जिससे जो इंटरफेस है कम हो और काम बड़ी तेजी से आगे बढ़े। ऑनलाइन ही सब चीजें की अप्रूवल होनी चाहिए। Very briefly, Dr. Sharma, what is the impact of the FOMC meeting likely to be on the Indian stock market, especially with the FIIs have been the net sellers in today's trading to the tune of almost 6,000 crore rupees? I think now Fed should not be harsh, because they have already faced the heat of the increasing interest rates, and world economy is going to decelerate in the current year 2023, and growth is significantly decelerating in many advanced economies. So now they have to take the rational measures so that the growth is supported at this juncture and demand is created not only in the advanced economies but other economies also, because all the economies are end of the day connected. So we have to jointly, collaboratively support the overall world economic growth so that the growth momentum becomes normal, and we are able to grow at 4-5% every year in the world economic system, and economies are also gaining their momentum and creating the employment opportunities. So inflation was a major challenge, though now the inflation is decelerating. Right. Inflation is coming down. Inflation has almost peaked in all the economies, and barring few economies like problematic economies like some economies in the South Asian region. But overall, the peak rates are now achieved by many economies, and inflation is expected to decelerate more and more in the coming times. I think that will be a disinflation also. Inflation will drastically coming down because the growth is Right, Dr. Sharma, we have our next story to also take, where we will in fact look at how the Asian markets have performed along with the rupee. एशिया बाजार से पहले नजर डाल देते हैं आज मुद्रा बाजार में क्या रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की मजबूती से 81 रुपए 52 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स मामूली बढ़त से 102 के स्तर पर दर्ज हुआ। बहुत संक्षेप में डॉक्टर शर्मा की किस तरह से जो रुपया है वो तकरीबन हालांकि 82 रुपए के आसपास निरंतर बना हुआ है, कितना दबाव में नजर आता है अभी भी वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए और घरेलू चुनौतियों को देखते हुए? देखिए, रुपये के ऊपर जो वॉलेटिलिटी की वजह से कुछ दबाव कभी कभार बनता है, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा रुपये में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और अगर आने वाले टाइम में ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये थोड़ा डिमिनिश करते हैं, तो हमारा जो रुपये है वो एक पॉजिटिव बायस के साथ थोड़ा करेक्शन ले सकता है, और हम देख सकते हैं कि इसको 80 के आसपास इसको स्टेबल होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी रुपये में ऐसे कोई वरीज नहीं है कि रुपये में जैसे पहले काफी डिसोलिडेशन हुई उस तरीके से कोई आगे फॉल होगा। जी, नजर डालते हैं एशिया शेयर बाजार पर। एशिया बाजारों में आमतौर पर तेजी का दौर रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% की बढ़त से बंद हुए। हांगकांग का हैंगसेंग और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। जापान का निक्केई लगभग पूर्व स्तर पर बरकरार रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में गिरावट का दौर रहा। जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 0.3% से 0.2% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Looking at the US market now, Wall Street ended a choppy session higher yesterday as investors grappled with an onslaught of economic data and a string of mixed corporate earnings, all while looking forward to next week's Federal Reserve monetary policy meeting. The data showed that the US economy fared better in the fourth quarter than analysts expected, and the labor market remained tight despite some signs of weakening demand. The Dow Jones Industrial Average rose 0.6%, the S&P 500 climbed 1.1%, and the Nasdaq Composite Index surged 1.8%. Dr. Sharma, we are mentioning about how the rupee had firmed up against the dollar in today's trade. But looking at the US dollar index, it's come down substantially to 102. How does a weaker US dollar index benefit the rupee and the economy of India?
Yes, because now situation is that our economy, as mentioned in my earlier connotations, that is the fastest moving economy, and we have no major worries for the rupee deceleration. Rupee will now strengthen, and that already mentioned that it can stabilize at around 80 or somewhere between 79-80, because now because strong dollar is not benefiting the US economy. Dollar is now weakening once again. So that will provide a good room for the other currencies of the emerging markets, particularly for the growing economies which are growing in a good momentum. So appreciating rupee or stability in rupee will be beneficial for the Indian traders, not only for the importers but for the exporters also, because they will get the cheap raw materials and that will increase their price cost margins and competitiveness in the international market. So I think this deceleration in dollar, weakness in dollar is beneficial for the competitiveness of our exporters and the manufacturers. Very briefly, what is the likely decision of the FOMC meeting regarding interest rates? I think if there is any increase in the Fed rate, that should not be more than 0.25. That is my expectation. Otherwise, they can maintain the status quo. Let's have a look at the oil market now. Oil prices rose for a second session today, supported by stronger than expected U.S. economic growth, strong middle distillate refining margins, and hopes of a rapid recovery in Chinese demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $88.84 per barrel, while WTI crude prices was at $82.32 per barrel. Dr. Sharma, we have seen that the U.S. crude stockpiles have actually gone up, and the Chinese demand picking up may not hurt the U.S. buying oil from the open market. But what about India? What are our strategic stockpiles like in order to counter the rising prices of crude? Briefly. I think this is the momentarily upside. Crude will remain volatile, and I am not thinking that crude prices will go up significantly, because demand trajectory is not happening across the world, and global growth is projected to decelerate significantly for the current year. Do you expect the rupee recovery and a weakening dollar to help India meet its expenses when it comes to oil? Yes, all these things will reduce the cost of doing business in India, because we will get the raw materials cost reduced, and our businesses and manufacturers will be benefited with the increased price cost margins. नफरदार सराफा बाजार पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 141 रुपए की गिरावट से 56,821 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। मार्च अनुबंध वाली चांदी 44 रुपए के सुधार से 68,720 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $1,947.50 प्रति आउंस के स्तर पर रहा। चांदी गिरावट से $23.84 प्रति आउंस के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में डॉक्टर शर्मा, सोना और चांदी, सोने के मुकाबले जिस तरह चांदी ने तेज बढ़त ली है, किस तरह से इसमें उम्मीदें जगती हैं? तो सोने में क्या है कि जो रूपी में थोड़ा एप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा वो प्राइस में थोड़ी करेक्शन होती है, बिकॉज दैट इज नॉट अ करेक्शन इन द डॉलर टर्म। सो सोने में तो चमक जारी रहेगी, और सिल्वर क्योंकि उस मोमेंटम में नहीं बढ़ा जैसे गोल्ड पीछे गेन किया है, तो दैट इज द I think recovery in the silver prices to make it at par with the gold prices. So क्योंकि जब गोल्ड में तेजी होती है तो सिल्वर भी बढ़ता है। सिल्वर अभी हमने देखा कि काफी देर से एक स्टिकी जोन में 69-70 के आसपास पर केजी काफी दिनों से चल रहा था, तो उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। Do you expect a weaker dollar to weaken the price of gold and silver coming into India? No. Weaker dollar will benefit the prices of gold and silver in the coming times, and because dollar is always beneficial for the increase in the prices of gold. So right. That is the expectation that prices will remain intact in the metals like gold and silver in the coming times. जी, डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
Aadhaar e-KYC transactions jumped 18.5% to 85 crore in Q3 of the financial year 2023. Domestic markets witnessed heavy losses. Sensex closes below the 59,400 point level. Nifty settles below 17,650 level. And global crude prices rise to trade around $88.84 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.